Okay. Good evening, everybody. We'll start today. Welcome to the second session of Excel. Um, Today we'll create one application. Like, for example, the application which will help us to use the all the formatting tools of Excel, and very few formulas, maybe one or two formulae. So we'll start looking that. So as I told, as I shown you yesterday about the sheets which were we going to create for practice. So one of those, maybe the invoice, will this invoice we will what we'll do is we'll create this invoice sheet, right? So this we will create. We'll try to create exactly the same, not exactly, but we'll try to create the same sheet so that we will be helpful. It will be helpful for us to maybe create the or understand the formatting tools of Excel, right? So this is what there are two sheets. If you see, this is sheet number one and this is sheet number two. So there are two sheets, and then we'll see how to make these two sheets where the one is the one will be the entry form and other one will be the calculation. So this we'll see, and we'll create this invoice step by step from just from beginning from scratch, right? So this is the sheet which we are creating today. Okay. So we'll start from the blank sheet. So this is the blank sheet. So both sheets are there in front of you so that we can take a reference. So this is the sheet which we are going to create, and this is the blank sheet with which is there in front of you. Okay. Now let us start one by one. Still some students are okay. So as I told yesterday, these are the rows and columns. Like these are the columns, right? And these are the rows. So rows and column height can be adjusted. So we'll see how to adjust and how to do that initially, right? So now if you click on this, like for example, I want to increase the height, the distance of, see this D. I want to increase the size of D, so I can simply increase by this way, right? See it this way. And if I want to, I want, like if I want um, to increase the row height, so this row height and can increase just by, what I'm doing is I'm just taking mouse over the point where I want to change the height or length or size. So what automatically the cursor is changing. See, the cursor is changing. If you can see, the cursor is changing, and that you need to understand. See, Excel is so nice that, or all Microsoft applications are so nice that whatever you will do, the cursor changes automatically. The cursor changes. So when the cursor is changing, you need to remember, like, right? You need to see that how exactly the cursor is changing. So here it see the cursor is changing. It is showing me the arrow horizontally. It means that I can move the cursor. I can move the cursor horizontally. So that I can do, right? So this is what is required. So I need to understand. I can change the size of this row also and size of this row also and column also, that I can change. So this is point number one. Now let us see what is there in our the sheet in which we want to create. So here see row number one. It is the row height is it's more, and then company name and invoice. So I'll change. I'll write same thing. I'll type here in row. So now this first row, company and square bracket, right? Company, and it's all cap locks. Company name, the square bracket is complete. And then in one is the company name, and then other is in other, maybe in H, right? See, ABC is put together, and in H invoice is written. So I'll similarly in H I'll write invoice. So in H I will write invoice. Invoice is also capital, right? That's what I did. Done. So this is what I do. But what is the difference? Now I have to increase the size of the invoice font. So that I will change the font size and I'll make it Arial. So Arial font बना दिया उसको, Arial font change कर दिया, and then I'm slowly increasing the size of this, right? See,
This is sufficient, or if you want to increase or decrease, you can do that. So this, see, the invoice is there, and it's not only that, the see invoice, I'm selecting it. So कैसे कर रहा हूँ मैं उसको, उस पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट. एंड देन आई एम चेंजिंग द फॉन्ट कलर ऑल्सो. हियर द फॉन्ट कलर इज दिस इज द फॉन्ट कलर, और इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ. सो इस तरह से मेरा इनवॉइस बन गया. नाउ सी द कंपनी नेम कैसा हो गया, सी. नाउ सी, कंपनी नेम इज देयर, इनवॉइस इज आल्सो देयर. नाउ कंपनी नेम का भी फॉन्ट क्या है, थोड़ा सा बड़ा है. तो कंपनी नेम का फॉन्ट भी क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ. नाउ सी, नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट इज देयर, ये कंपनी नेम के A1, दिस इज, जस्ट रिमेंबर, दिस इज दिस इज कॉलम A एंड रो 1. A column and row 1. So this cell is A1 cell. This cell is B1 cell. This cell, because we need to, हमको ये सेल के नंबर और नाम भी याद रखने पड़ेंगे. दिस इज B1, दिस इज C1, दिस इज D1, दिस इज E1. Similarly, this is A5, this is C5. Now, for example, this is F8, F8. See, F8. दिस इज, ये यहाँ पे ये 8 भी हाईलाइट हो रहा है, F भी हाईलाइट हो रहा है. सो इसका मतलब ये सेल का नंबर क्या है, F8 है. ये अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो D11, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे A1 में, तो कंपनी नेम आपको यहाँ दिखाई देता है, मतलब जो टेक्स्ट हमने इंटर किया था वो यहाँ पे भी दिखाई देता है. फॉर्मूला बार में भी दिखाई दिखाई देता है. अगर मैं बी पे, अभी देखो ये बी पे ऊपर ऊपर आ रहा है, बट अगर बी पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो वो नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये कंपनी नेम जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ ए में है, A1 में है, ये बी सेल में नहीं है. तो फिर ये ऊपर से क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो टाइपिंग जब होता है तो वो आगे कवर कर लेता है, बट एक्चुअली वो कौन से सेल में है, सिर्फ यहाँ पर है. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका ए को और बी को, दोनों, ये दोनों को मुझे, जैसा यहाँ पे क्या किया हमने, देखो एच, ये सिर्फ एच में है ना, इनवॉइस सिर्फ एच में, आई में है क्या, नहीं है इनवॉइस. देखो यहाँ पे इनवॉइस क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इनवॉइस आ रहा है, राइट. ये देखो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इट इज ओनली इन एच. तो फिर अगर मैं वहां से रिमूव करता हूँ तो आई में क्या है, आई में कुछ नहीं है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ए और बी सेल जो है ये मर्ज करना पड़ेगी. सो फ्रॉम हियर मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, A1 और B1 को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो मर्ज है उसको मर्ज कर लिया. अब देखो वो मर्ज हो गया. अब ये पूरा के पूरा ए और बी दोनों में आ रहा है, A1 B1 में. अब A1 B1 में आ भी गया, पर वो उसका फॉन्ट मुझे थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा फॉन्ट उसको बढ़ा दिया, राइट, फॉन्ट बढ़ा दिया. अब और क्या करना है, एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो नीचे है, मुझे उसको सेंटर में लेना है. तो यहाँ पे देखो ये अलाइनमेंट है. सो अलाइनमेंट यहाँ पे करोगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे करोगे तो बीच में रहेगा, यहाँ पे करोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट आएगा, इधर राइट अलाइनमेंट आएगा, है ना, ये बॉटम लाइन पे आएगा. सो दिस इज टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. सो मुझे चाहिए सेंटर में चाहिए. दिस इज व्हाट इज द केस. सिमिलर आई हैव टू डू विथ दिस ऑल्सो, ये भी मुझे करना पड़ेगा, एच से लेकर के तक मुझे मर्ज करना पड़ेगा. एंड दिस मर्ज इज, एंड नाउ इट इज एट सेंटर ऑल्सो. सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फर्स्ट लाइन जो है, वो फर्स्ट लाइन मेरा ओके हो गया. कंपनी नेम भी आ गया. और कंपनी नेम मुझे, अगर मुझे और थोड़ा बड़ा करना है तो आई कैन डू दैट ऑल्सो. सी, मैं सी को भी मर्ज कर लेता हूँ. ए बी तो ऑलरेडी मर्ज था, सी को भी मर्ज करता हूँ. सो अगर मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये अनमर्ज हो गया. सी व्हाट आई, मैंने क्या किया, वापस अभी मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, आई डू इट अगेन, आई डू इट अगेन, राइट. अभी ये ऑलरेडी है, और अगर मैं इसको ये सिलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अनमर्ज हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगी तीनों. देखो वापस ए बी सी अलग हो गए, अब मुझे तीनों को मिलके मर्ज करना है. सो आई सिलेक्ट ऑल थ्री, ए बी सी तीनों सिलेक्ट कर लिया और मर्ज पे क्लिक किया. सो व्हाट इज, अब क्या हो गया, कंपनी नेम बीच में सेंटर में आ गया. यहाँ से अभी आपको समझ में आएगा, ये मैं लेफ्ट में भी कर सकता हूँ, राइट में भी कर सकता हूँ, सेंटर में भी कर सकता हूँ, टॉप भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, right. And then whatever, wherever you want, you can align it. If you want to change the direction, you can change the direction also. See, है ना, you can change the direction also. You can change the, from here you can change the direction also. कुछ एंगल में अगर डालना है तो एंगल एंगल में भी डाल सकते हैं, एंगल में भी रख सकते हैं. सो वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू इट, राइट. ठीक है. तो दिस ओरिजिनल इज दैट. तो दिस इज व्हाट, इसको भी आपको अगर सेंटर में लेना है तो ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, जस्ट चेक. ये पहला जो हो गया अपना, ये खत्म हो गया. एबीसी के बी भी आ गया, और ये इनवॉइस भी आ गया. अब इनवॉइस में क्या किया उन्होंने, मर्ज नहीं किया है. उन्होंने क्या किया इनवॉइस में, उन्होंने क्या किया, एच की सिर्फ क्या कर दी थी, यहाँ पे एक फर्क किया है उन्होंने, एक आप अगर देखोगे तो फर्क किया है उन्होंने, इसको मर्ज नहीं किया है. सो अनमर्ज किया, और एच का, सिर्फ एच का क्या बढ़ा दिया, साइज बढ़ा दिया, और इसको सेंटर में ले लिया उन्होंने.
डिफरेंस समझ में आ रहा है? तीन सेल मर्ज नहीं किए थे मैंने, तीन सेल मर्ज किए थे, उन्होंने मर्ज नहीं किए। सो एग्जैक्टली जैसा उन्होंने बनाया है वैसे ही मैं आप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? जैसा उन्होंने बनाया वैसे ही बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कंपनी नेम हमने दे दिया, इनवाइस दे दिया। सो कंपनी नेम भी हमने दे दिया यहाँ पे, सी कंपनी नेम भी दे दिया और इनवाइस भी दे दिया। नेक्स्ट इज स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस है ना, अभी हम लोग लेते सिटी ये वगैरह अपने हिसाब से, और फोन नंबर मोबाइल नंबर अपने हिसाब से एड्रेस डाल देते हैं। ये थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल है। हम लोग अपने हिसाब से बना लेंगे। सो अपने हिसाब से क्या बनाएंगे? सो फर्स्ट इज नाउ कंपनी का नेम आ गया, देन स्ट्रीट। तो अभी एड्रेस लेते हैं पहले। एड्रेस, एड्रेस के नीचे आएगा स्ट्रीट। ओके, उससे पहले भी हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल, चलो स्ट्रीट ठीक है। स्ट्रीट, उसके बाद में एरिया, सिटी, पिन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ठीक है, इतना सारा हमने ले लिया। ओके, फाइन। तो ये सारा ये हमने इसको टाइप करके जैसा इसमें बनाया, इसमें हमने ले लिया। अभी क्या चाहिए? मोबाइल नंबर चाहिए। सो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। सो विल राइट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर थोड़ा आगे चला गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मोबाइल नंबर ये आगे चला गया, मोबाइल नंबर जो है ना थोड़ा सा आगे चला गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं इसका ये क्या कर सकता हूँ, यहाँ इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास ये एक ऑप्शन है ना। देखो ए का क्या कर दिया मैंने, साइज बड़ा कर दिया। फ्रॉम ऊपर से ये एरो करके ए का साइज मैंने बड़ा कर दिया। मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ, सी व्हाट आई कैन डू इज ए का साइज छोटा रखकर ही, ए का साइज छोटा रखकर ए और बी सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए मर्ज कर सकता हूँ। सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए ए और बी मर्ज कर सकता हूँ। सी, नाउ दिस इज ओके। बट इसमें फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे कॉलम जो है, ये कॉलम में दिक्कत आ जाएगी, राइट? तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, राइट, व्हाट आई विल डू इज आई सिर्फ ये साइज जो है थोड़ा बड़ा रख देगा। साइज बड़ा रख दिया तो एड्रेस हो गया। या एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, स्ट्रीट यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अब कहाँ से कहाँ तक लिखना है मुझे, यहाँ इसको जगह ये करने के लिए, लिखने के लिए, सपोज यहाँ तक कि ये चार मुझे मर्ज करने। सो आई वांट टू गिव दिस स्पेस फॉर राइटिंग दी स्ट्रीट और ये एरिया, सिटी, पेन, इसको एंटर करने के लिए मेरे पास। और ये सारी के सारे मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। ये सारे के सारे अब मर्ज करने के मेरे पास दो ऑप्शन है। मर्ज करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये मर्ज भी कर सकते हैं, और एक ये फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या फायदा है देख, मुझे ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ का एक जो ये पूरा 4 नंबर की रो है ये सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर करने के बाद देखो कर्सर चेंज हो गया, पेंटर के जैसा, ब्रश के जैसा दिख रहा है। ये मुझे इसी को मुझे कॉपी करना है कहीं और, सेम फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है? BCDE को मर्ज किया हुआ है। तो ये BCDE को मर्ज नहीं करते हुए कॉपी, मतलब फॉर्मेट पेंटर के जरिए भी कर सकते हैं। सी, वापस मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और नीचे भी क्लिक करूंगा पिन का, तो पिन भी मर्ज हो जाएगा। मैं इधर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, स्टेट पे क्लिक करूंगा या डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूंगा, वो भी मर्ज हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, ये व्हाट एग्जैक्टली इट डज, ये क्या करता है, जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमको कहीं और अगर पेस्ट करना है तो हमको सिर्फ फॉर्मेट, टेक्स्ट नहीं, सिर्फ फॉर्मेट हमको उठा के अगर पेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर भी हमारा हो गया, वो भी हमको समझ में आ गया, और मोबाइल नंबर ये सारा। सो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं भी सीधे मैं क्या करता हूँ, इसको टेबल बना लेता हूँ, टेबल के बॉर्डर दे देता हूँ, तो हमको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। अभी ये इसको भी मैं टेबल बॉर्डर बना लेता हूँ। सो आपको समझ में आएगा कि कैसा दिखाई दे रहा है। सी हाउ नाइस। अभी इसका क्या करना है मुझे, इसको थोड़ा सा ये एड्रेस और ये जो है, इसके ये सारे के रो हाइट मुझे थोड़े बढ़ाने हैं। सो इसका रो हाइट बढ़ाने के लिए मैं ये पूरा सिलेक्ट करूंगा, राइट। सो आई सिलेक्ट ऑल। मैंने ये एड्रेस का ये सेक्शन जो है, ये पूरा सेक्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग, सी हियर, you can see here, see the I'll select this, or I'll go into format, I'll click on format, I'll click on row height, and here I'll write, I'll
इंटर 20 नंबर। तो मैंने रो हाइट बढ़ा दिया, देख बढ़ गया रो हाइट सबका एक साथ, अलग अलग फॉर्मूले। और मैं अगर माउस से इसको आगे रो हाइट बढ़ाऊंगा, और माउस से रो हाइट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, सबका 20 नहीं आएगा। यहाँ से क्या होगा, सबका 20 आ गया, मुझे 20 नहीं चाहिए, और थोड़ा बढ़ाना है। सो आई मेक इट रो हाइट आई मेक इट 22। सो देखो, है ना, 22 रो हाइट हो गया। पर पूरे रो का हो गया, इधर भी ये भी सारे रो हाइट बढ़ गए, तो नो प्रॉब्लम। बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको जो चाहिए हो गया। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंपनी नेम आ गया, ये आ गया, पर कंपनी नेम मुझे है ना, ये पूरा यहाँ तक चाहिए ऐसा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सो हियर व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन मर्ज हियर अगेन, अनमर्ज हो जाएगा और मर्ज हो जाएगा। सो ये मर्ज हो गया, कंपनी नेम भी हो गया, इनवाइस भी हो गया। कंपनी नेम आई वांट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कंपनी नेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो कंपनी नेम, मुझे कंपनी नेम चाहिए, एक्चुअली कंपनी का नाम डालना है। तो आई राइट ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं एड्रेस डाल सकता हूँ। इसका मुझे फॉन्ट बढ़ाना है, आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट हियर, यू नो आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट। इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, आई कैन चेंज द बैकग्राउंड, आई कैन चेंज द बैकग्राउंड राइट हियर, वॉट एवर बैकग्राउंड आई वांट आई विल चेंज द बैकग्राउंड। उसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आई कैन चेंज द कलर, सो दिस इज। उसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू इट राइट। सो ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इनवाइस है। अब जिसको आपको भेजना है, उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, वगैरह वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज वन। नाउ नेक्स्ट इज अभी अगेन आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू मेक। अब ये पार्ट अपना हो गया, सी ये पार्ट भी हमने बना लिया, ये पार्ट भी हमने बना लिया। अब ये पार्ट हम बना, दिस पार्ट विल सी, इनवाइस का नंबर, इनवाइस नंबर, डेट, कस्टमर आईडी और टर्म्स, चार चीजें मुझे लिखनी है राइट। इनवाइस, डेट, सो आई विल राइट डाउन ऑल दिस। पहले यहाँ पे इनवाइस आएगा, इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर आ गया राइट, फर्स्ट इज इनवाइस नंबर, ओके। देख लो आप, डेट, कस्टमर आईडी राइट, उसके बाद यहाँ पे डेट है, डेट है, फिर एक लाइन छोड़कर कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी इज ऑल्सो देयर राइट, एंड देन अदर देन कस्टमर आईडी देर इज वन मोर फील्ड, टर्म्स। तो टर्म्स ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे भी डाल सकते, बट विल राइट इन टर्म्स हियर, टर्म्स राइट। सो दिस टर्म्स इज ऑल्सो देयर। अब इनवॉइस नंबर, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, सो दैट आई विल मर्ज। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, सो दिस फील्ड ऑल्सो आई नीड टू मर्ज। कस्टमर आईडी भी यहाँ पे दोनों इसमें आ जाएगा, दिस ऑल्सो आई नीड टू मर्ज राइट। डेट यहाँ पे आ जाएगी, आई नीड इनवॉइस कस्टमर नंबर डेट, ये मुझे चाहिए सेंटर में चाहिए। सो दिस इज, आई नीड इट इन सेंटर, सेंटर राइट, ये भी मुझे सेंटर में चाहिए, ये भी मुझे सेंटर में चाहिए राइट। अब ये भी आ गया, और दिस आई वांट लाइक, इसको मुझे बैकग्राउंड, ये बॉर्डर डालना है, तो ये बॉर्डर आ गया। अब ये इनवॉइस नंबर का मुझे क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड, उन्होंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, देखो आई विल शो यू ओरिजिनल वन राइट। यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, ग्रे कलर का बैकग्राउंड किया है, इसलिए कि वो फिक्स फील्ड है। तो इसका ग्रे कलर का बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, सो आई चेंज द बैकग्राउंड कलर टू ग्रे, चेंज द बैकग्राउंड कलर टू ग्रे, मे बी दिस। अभी देखो, इसको मुझे फॉर्मेट करना है, तो मैं ये सेम कलर यहाँ से भी कर सकता हूँ, या मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट हो गया, देन फॉर्मेट पेंटर राइट, राइट अगेन फॉर्मेट पेंटर, ये हो गया फाइन। दिस इज द वे टू डू दी फॉर्मेटिंग, ठीक है। अम, एक सेल एक्स्ट्रा मर्ज हो गई है, तो उसको मैं कैंसिल करता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अब ये सेंटर में लेना है, सो दिस सेंटर आई विल टेक इट सेंटर। डेट, इसका फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ भी करना है तो देन यू कैन डू इट राइट। सो दिस इज डेट, कस्टमर आईडी, अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर जिसका भी रहेगा वो इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, कस्टमर आईडी डाल सकते हैं। सो दैट इज दी पॉइंट। नाउ ये पार्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो ओवर, सी दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर। अब इसमें नंबर एंट्री करनी है 2034 और डेट वगैरह डाल के, कोई भी डेट,
तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा एंट्री कर देंगे यहाँ पे। इनवॉइस नंबर में भी 2345, दिस इज द इनवॉइस नंबर। नाउ डेट विल पे टूडेज डेट, राइट। सो आई शो यू कैसा कर सकते हैं। तो टूडेज डेट इज फॉर एग्जांपल, अभी डेट के बारे में ज्यादा मालूमात मुझे बतानी है, इसलिए मैं लाइक टूडेज डेट इज 24, सो आई मैंने 24 लिखा, देन सॉरी 25, एंड देन 02, एंड देन 2025। अब देखो मैंने ये डेट क्या कर दिया, एंट्री कर दिया। जैसे डेट एंट्री किया, नाउ आई क्लिक एंटर। अभी तक मैंने एंटर क्लिक नहीं किया। जैसे मैं एंटर क्लिक करता हूँ यहाँ पे करके, जैसे मैं एंटर क्लिक करता हूँ, सी 25 टू 25/2/25 ये हो गया। दूसरा मेरे पास और ऑप्शन है, मैं लिख रहा हूँ 25, वापस लिख रहा हूँ मैं 25 फरवरी 2025, राइट। देखो क्या हो गया, फिर वापस वो चेंज कर दिया, 25/2/25 ही कर दिया। अब दिख रहा है आपको। तो ये चीज, तो फिर मुझे अगर 25 फरवरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, विल सी दैट आल्सो। डेट फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, टाइम फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, वगैरह वगैरह, दैट आल्सो विल सी, राइट। कस्टमर आईडी हो गया, सॉरी इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया। नाउ विल पुट कस्टमर आईडी, मे बी AP, कस्टमर का कुछ नंबर देंगे, कस्टमर AP23 एंड AP, ऐसा कुछ नाम नंबर दे दिया। टर्म्स लाइक वहां पे उन्होंने लिखा 30 डेज में, तो कीप इट इज 30 डेज, राइट। और इसको भी मुझे क्या करना है, सेंटर में लेना है, तो आई कीप इट इन, आई टेक इट इन सेंटर, राइट। इसको भी मुझे क्या करना है, बॉर्डर अगर डालना है तो आई कैन पुट अ बॉर्डर टू दिस ऑल्सो। सो दिस पार्ट इज ओवर, सी। सो नाउ ऑलमोस्ट ये पार्ट अपना पूरा हो गया। अभी बिल टू और शिप टू, ये दो एड्रेसेस आएंगे, बिल टू और शिप टू, ये दो एड्रेसेस आएंगे। सो आई पुट बिल टू एंड शिप टू, दो एड्रेसेस यहाँ पे डाल देंगे। तो बिल टू और शिप टू, अभी ये पूरा यहाँ से सामने सामने, तो आई नीड टू टेक इट फ्रॉम हियर। तो ये बिल टू, दिस इज वन, एंड देन शिप टू, दिस इज सेकंड। अब यहाँ पे मुझे क्या, बिल टू और शिप टू में क्या क्या लेना है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं और एक करना चाहता हूँ। अभी मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा, राइट। सो आई कंट्रोल C, आई कॉपी इट, लेट मी चेक इफ इट इज, आई कॉपी इट फ्रॉम हियर, है ना। कहीं से अगर कॉपी करना है, एक एक्सेल सीट से दूसरे एक्सेल सीट में कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, मैंने वहां से कॉपी कर लिया, एंड आई पुट इट कंट्रोल V, सी द थिंग्स आर देयर, है ना। यहाँ मेरा आ गया मेरे पास ये सारी चीजें। और मुझे इसको क्या करना है, फॉर्मेट में ये बॉक्स बनाना है। सो ये आ गया, राइट। अब सेम चीज मुझे करनी है, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C कर रहा हूँ, और शिफ्ट टू, देन कंट्रोल V। सो ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी हो गया। और मुझे ये जो है, ये दोनों क्या करने, आई वांट टू मर्ज इट। सो ये नेम आ गया, मर्ज करके, क्योंकि वहां पे, यहाँ तो पॉसिबल था क्योंकि ये लेंथ ऑलरेडी थी, पर यहाँ पे मैं लेंथ चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको। सो नाउ दिस आई नीड टू फॉर्मेट, एंड आई नीड टू फॉर्मेट इट फॉर ऑल, सी, ऑल, ऑल, सबके सब क्या हो गया, मर्ज भी हो गया, और फॉर्मेट भी हो गया, और ये टेबल भी बन गया, सब कुछ इज रेडी नाउ, दिस इज आल्सो रेडी। सो नेम टू, नेम स्ट्रीट, और ये नेम मुझे जो डालना है वो यहाँ से ये मर्ज करके यहाँ पे नेम मुझे इंसर्ट करना है, यहाँ पे नेम टाइप टाइप करना है। सो दिस इज ऑल्सो रेडी फॉर मी। सो ये भी मैंने क्या कर लिया, जो एंट्री करनी है वो एंट्री के लिए भी जगह बनाकर रख दी। सो दिस इज ऑल्सो, आई हैव क्रिएटेड वन स्पेस टू एंटर दी बिल टू also, and the bill ship to also, this is also ready with me, just check। बिल टू भी हो गया, शिप टू हो गया। सिर्फ बिल टू को क्या करना है, अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमको पता है बैकग्राउंड कलर कहाँ से चेंज होता है। सो बैकग्राउंड कलर विल चेंज इट फ्रॉम हियर, बैकग्राउंड कलर विल चेंज इट फ्रॉम हियर, राइट। हाँ, बैकग्राउंड ये पूरा के पूरा अगर करना है, सो इफ आई वांट बिल टू यहाँ से यहाँ तक पूरा देखना है, तो ये मर्ज कर सकते हैं, वी कैन डू दैट ऑल्सो। अच्छा दिखे ऐसा, ये बिल टू हो गया। और शिफ्ट टू अगर करना है तो ये शिफ्ट टू हो गया, इसको भी हम मर्ज कर सकते हैं। सो ये बीच में आ जाएगा। इसका कलर अगर चेंज करना है तो कलर भी चेंज करते हैं, एनीथिंग यू वांट यू कैन डू इट, सो दैट इज द। तो देखो ये सारा हो गया, फाइन। तो अब नेक्स्ट विल सी कि ये पार्ट अपना हो गया, राइट। ये पार्ट अपना, ये दिस पार्ट इज ओवर, दिस पार्ट इज ओवर। नाउ विल मेक दिस पार्ट। ये पार्ट भी मैं क्या करता हूँ, टाइप करने से बेहतर है कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो सेम चीज, सेम थिंग, राइट। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये चीज मैं क्या कर लेता हूँ, सिर्फ क्या है, कॉपी क्या करना है, इसको सिर्फ टाइप करते जाना है। कौन से फील्ड में, जो फील्ड में दिया है वो फील्ड में कॉपी करते जाना है। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट
जो मेरा शीट है उसमें मैं इसको कट पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया। सी, आओ, ये पूरा मेरा इनवॉइस एज गुड एज रेडी हो गया। लुक एट दिस। फाइन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यूनिट प्राइस थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा, तो ये यूनिट प्राइस भी आ गया। एवरीथिंग इज रेडी। फाइन। अब ये सिर्फ इसको चाहिए मुझे, दिस आई वांट इट इन सेंटर। अगर ये डैश जो लिखा है वो सेंटर में चाहिए तो सेंटर में भी आ गया। सो यू कैन सी इट नाउ, राइट। आप ये देख सकते हैं पूरा। यू कैन सी इट हाउ दिस इज सेंट्रली जस्टिफाइड। दिस यूनिट प्राइस कैसा आ गया, दिस नेम, राइट। शिप टू को सेंटर में मैंने ले लिया, बिल टू को सेंटर में ले लिया, नेम सिटी ये सब और इनवॉइस इज रेडी, है ना। अब सिर्फ क्या बचा, इसके बाद में नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस विल सी। द टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अगर कुछ लिखे तो उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखे। इफ यू वांट यू कैन ऐड टर्म्स एंड कंडीशंस हियर, we'll add it, we'll add some terms and conditions here, right? So here what I will do is I'll write, थोड़ा सा font point ये zoom, yeah, what I will do is here I'll write terms and conditions, terms and conditions, right? So terms and conditions में यहाँ पे लिख दिया if I want now। अब मुझे एक प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि 38 और 39, ये जो 38 और 39 है, इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा बहुत नजदीक नजदीक आ गया, तो मैं उसमें क्या डालना चाह रहा हूँ, गैप डालना चाह रहा हूँ। तो वहां, हाउ कैन आई पुट अ गैप, आई पुट हियर एंड मैं बोलूंगा यहाँ पे इंसर्ट। देखो इंसर्ट, मैंने क्या किया, 39 पे क्लिक किया, 39 पे क्लिक किया, सॉरी 38 पे क्लिक किया और राइट क्लिक किया, माउस का राइट क्लिक, 38 पे क्लिक किया, माउस का राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट आ गया। ठीक है। 38 पे इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ, देखो ऊपर रो ऐड हुई। तो मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए, तो मुझे 40 पे क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट करूंगा तो दोनों के बीच में रो ऐड होगी। सी, रो इज बिन एडेड। इसमें रो ऐड होगी, रो मतलब अभी तो रो ऐड हुई पर बाद में हम जब प्रिंटिंग करेंगे तो स्पेस दिखाई देगी सिर्फ, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ आ जाएगी, सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ आ जाएगी, है ना। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक फॉर एग्जांपल एनी टर्म्स एंड कंडीशंस यू वांट टू पुट, लाइक थ्री टर्म्स एंड कंडीशंस यू वांट टू ऐड, you can add, like here you will write 50% advance, है ना, restricted to Maharashtra jurisdiction. These are the terms and conditions we can put, right? No complaint, sir, use. These are the three terms and conditions मैंने डाल दी, राइट। अब ये दिखाई दे रहा है। अब देखो वापस में मर्ज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको मर्ज कर दिया, पहले वाले को मर्ज कर दिया, मर्ज करके ये इसको लेफ्ट हैंड करना पड़ेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट अलाइन कर दिया। फॉर्मेट प्रिंटर से ये दोनों बीच बचे हुए भी मैंने क्या कर दिए, right? So this is the terms and conditions. Fine. So this is basically a very nice, अच्छी तरीके से अपना क्या बन गया, इनवॉइस अपने अच्छे तरीके से बन गया। नाउ अब छोटा करके आप देख लो, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स बाहर के बॉक्स, ये क्या हो गया, इसको बॉर्डर बन गया है, तो ये आई डोंट वांट दिस बॉर्डर, तो इसका बॉर्डर मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। सो मैंने इसका बॉर्डर क्या कर दिया, नो बॉर्डर कर दिया। पर ये नो बॉर्डर करने के बाद यहाँ की भी चली गई, तो इसको मुझे बॉर्डर देना पड़ेगी। सो दिस आई विल पुट अगेन, राइट। इसका रिमूव करना है, इसका मुझे रिमूव करना है और इसका मुझे बॉर्डर डालना है, राइट। तो फिर क्या होगा, अच्छे से आ जाएगा बॉर्डर आ गया, राइट। अभी और क्या प्रॉब्लम है, और ये पूरा खाली खाली, यहाँ पे पूरा खाली खाली दिख रहा है। तो खाली दिख रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे बीच में लाइन डालनी है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन डालनी है बीच में। तो कैन आई डू दैट, यस आई कैन डू दैट। मर्ज, यहाँ से इंसर्ट लाइन भी कर सकते हैं, इंसर्ट यहाँ से शेप में, यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, सी, राइट। ये लाइन तो आ गया, अभी देखो ये लाइन आ गया, बट ये लाइन कौन सा है, कैसा है, आपको लाइन दिखाई दे रहा है, बट ये लाइन का क्या है, अभी थिकनेस बहुत कम है। तो लाइन का थिकनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसा मैं लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ ये चेंज हो जा रहा है, ऊपर का मेनू एक नया फॉर्मेट का एक नया मेनू आ गया, देखो। वापस मैं क्लिक करता हूँ, साइड में क्लिक करता हूँ तो चला गया। मैं जैसा लाइन पे क्लिक करता हूँ
तो फॉर्मेट का और एक मेनू आ जाता है। सो हियर नाउ आई वांट लाइक हियर आई वांट इसका क्या बने थोड़ा सा तो मैं ये लाइन के ऊपर माउस कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप यहाँ पे आएगा, देखो फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप अगर मैं करता हूँ तो फॉर्मेट शेप में यहाँ पे आ गया आपका ये विड्थ, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। तो विड्थ आ गया, सी द विड्थ, तो विड्थ अगर मैं ये बढ़ाता हूँ इसकी, सी आई विल मेक 3, तो इसका विड्थ बढ़ रहा है इधर देखो, इधर विड्थ बढ़ गया। और मुझे कलर भी चेंज करना है, सो आई चेंज द कलर, आई चेंज कलर टू मे बी दिस ब्लू कलर, डार्क ब्लू। एंड देन इफ आई वांट लाइन तो नो लाइन, नहीं लाइन नहीं चाहिए तो नहीं आएगा, चाहिए तो लाइन आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज दी, सो व्हाट आई डिड इज इन बिटवीन मैंने लाइन डाल दी इसमें, और वो लाइन भी कहाँ कैसे आई देखो। सो द लाइन इज, दिस लाइन इज देयर, बट ये लाइन का अभी थोड़ा प्रॉब्लम क्या है देखो, थोड़ा साइड में है, तो मुझे इसको एरो की से थोड़ा बराबर साइड बराबर लेना पड़ेगा, और इसको ड्रैग कर कर बराबर शिफ्ट टू शिफ्ट ये इस्तेमाल। तो लाइन भी आ गया, और मुझे चाहिए तो थोड़ा सा मैं उसको नीचे ऊपर जहाँ पे चाहिए वहां पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये लाइन आ गया, यही लाइन को मुझे यहाँ पर भी डालना है, देखो जहां जहाँ पे सेक्शन है वहां पर पे डालना है। कंट्रोल सी किया मैंने, लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी आ गया सी। तो दो जगह पे लाइन है, नो इट्स लुकिंग गुड राइट। एक अच्छा दिखने के लिए भी, दिखना भी चाहिए अच्छा। और कहाँ पे डाल सकते हैं मैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग सेक्शन है, वहां पे भी मैं डाल सकता हूँ। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और ये माउस को लाइन के ऊपर लेकर गया, चेंज हो गया कर्सर, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के पास भी आ गया। नाउ सी इट्स लुकिंग मच बेटर देन वॉट एवर वी हैव, उससे अच्छा दिख रहा है देखो। और ये थोड़ा सा कलर, ये वाला लाइट, ये कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई कैन चेंज दैट कलर, मुझे और थोड़ा डार्क बनाना है। तो ये यहाँ पे गया मोर कलर पे क्लिक किए, और आई विल मेक इट मोर डार्क, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, नाउ सी इट इज बिकम मोर डार्क। और डार्क करना है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यहाँ पे गए, मोर कलर पे गया, यहाँ पे आए, यहाँ पे ये कर्सर पे नीचे क्लिक किया, तो इट इज सी हियर इट इज बिकमिंग मोर डार्कर, यहाँ पे ये डार्क थोड़ा सा और बढ़ रहा है, ये डार्क बढ़ गया, क्लिक ओके किया, सी नाउ एबीसी लिमिटेड थोड़ा सा और डार्क बढ़ गया। जूम करके देखेंगे, इट लुक्स नाइस राइट। सी करना है, मर्ज करना है, दिस आई वांट टू मर्ज कर देंगे तो यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आई कैन पुट नेम लाइक स्टैम्प, स्टैम्प आ गया, इसको मुझे थोड़ा सा राइट बीच में लेना है, फॉन्ट साइज बढ़ानी है, सो दैट इज देयर। टू सी द इनवॉइस, नाउ इनवॉइस में मुझे अभी थोड़े फॉर्मूले डालने, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ये क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस, और ये मुझे फॉर्मूले से डालना है, सो राइट आई वांट टू डू इट। नाउ हियर आई विल जस्ट डिलीट दिस वैल्यूज आई डिलीट, दिस वैल्यूज आई डिलीट राइट, दिस वैल्यूज एंड डिलीट। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू ऐड हियर, ये जो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस इज टोटल अमाउंट राइट, यू नो, सो आई वांट टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। सो व्हेनेवर यू वांट टू ऐड अ फॉर्मूला is the quantity and the unit price should be multiplied to each other, and then and then the amount should be immediately reflected in that. So service fee, so let us make it rather than one, I'll make it two, so that I'll get unit price accordingly, right? So this so is here whenever you are okay, some students are still joining. Right. Okay. So we'll start. So now I want to add a formula. So how to add a formula? That is formula is always added with the sign of equal. इक्वल साइन आप जब भी टाइप करोगे एक्सेल को समझ में आ जाता है कि इसके बाद में जो आएगा वो फॉर्मूला है। और विदाउट, अगर विदाउट इक्वल साइन एनीथिंग आई राइट, लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई नाउ आई वांट टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है ये, सो F20, सी F20 ऑटोमेटिकली जैसा मैंने उसके ऊपर क्लिक किया उसको समझ में आएगा, इट हैज टेकन F एंड देन 20 इज द रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज F20 इनटू, इनटू इज स्टार, इनटू इज स्टार, इनटू स्टार करके इनटू लिया जाता है, so that is always taken into what, into what this 200, so G20। आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं F20 इंटू G20, और सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, बोथ थिंग्स आर ओके। F20 इंटू G20 इज सेम, और
क्लिक करोगे आप 2 पे और 200 पे तो भी चलेगा, एंड व्हेन आई क्लिक एंटर से ऑटोमेटिकली 400 द अमाउंट केम। सो फॉर्मूला कैसा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट व्हाट इज द फॉर्मूला, आई विल क्लिक ऑन हियर। फॉर्मूले पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, देखो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। हियर यू कैन सी द फॉर्मूला बार। सो हियर इन फॉर्मूला बार आई जस्ट राइट, तो फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिखाई देगा, राइट। सो दैट इज हियर। सो यू सी दिस हियर ऑल्सो, इफ यू क्लिक हियर, यहाँ पर अगर इसी सेल में आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक सेम क्लिक में करोगे तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। अगर राइट दूसरी तरफ क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक करोगे तो वैल्यू अमाउंट दिखाई देगी, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव यूज्ड, दिस इज द फॉर्मूला F20 इंटू D20। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे भी मुझे सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दिस इंटू दिस। अब ये फॉर्मूला कैसा, मुझे ये फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर बॉक्स बन गया, अभी मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। ये स्क्वायर बॉक्स जो बना है, ये स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डॉट, एक स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एंड व्हेन आई टेक कर्सर टू दैट स्क्वायर, वो कर्सर भी चेंज हो जाता है। देखो ये वाला कर्सर अभी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे करते हैं तो कर्सर छोटा हो जाता है, छोटा प्लस बड़ा प्लस छोटा प्लस big plus small plus। what does it this mean? It means that there is something different than the normal cursor, this is normal cursor, ये this is different cursor। so अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक करके उसको ड्रैग करता हूँ, so if I drag this I'll get, see, so now this formula is automatically copied, दिस फॉर्मूला इज ऑटोमेटिकली कॉपीड। अब अगर इस पे क्लिक करोगे, फॉर्मूला देखोगे तो ऑटोमेटिकली F21 G21 अपने आप आ गया। यहाँ पे क्या था, F21 G20 था, F20 G20 था। मैंने क्या किया, फॉर्मूला वापस लिखा नहीं, बस ड्रैग किया। एक्सेल को समझ में आता है कि सेम फॉर्मूला सेम सेल के लिए कॉपी करना है, राइट। देन आई विल ऐड हियर। अब ये और मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ एटम्स ऐड करता हूँ, विल मेक 3-4 एटम्स, राइट। अब ये न्यू क्लाइंट डिस्काउंट जो है वो मैं करता हूँ, सी दिस इज कंट्रोल एक्स करके, ये न्यू क्लाइंट डिस्काउंट में यहाँ पे ले लेता हूँ, सो दैट आई लेबर, तो यहाँ पे सर्विस फी हो गया, लेबर हो गया। उसके बाद में और कोई चार्जेस मैं डालता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल तो सर्विस फी एंड लेबर चार्जेस उन्होंने डाल दिए, तो इसका मतलब ये सर्विस और लेबर के बारे में है। सो व्हाट आई डू, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितनी क्वांटिटी है, मे बी उन्होंने 10 ट्रिप्स मारी, व्हाट इज द रेट, यूनिट प्राइस इज 500 मे बी। सो इसका क्या आएगा, इफ आई नाउ हियर अगेन आई गो हियर, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ एंड देन इफ आई ड्रैग इट, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो अपने आप फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। सो दिस 10 इंटू 500 इट्स 5000। अनदर थिंग आई ऐड, मे बी टैक्सेस, मे बी टोल, राइट। टोल मैंने ऐड कर दिया, कितनी जगह पे टोल, लाइक फॉर एग्जांपल 4 टोल, एंड द अमाउंट इज 312। तो 312 अगर वापस मैं यहाँ पे करता हूँ, इफ आई ड्रैग इट, सी ऑटोमेटिकली द कैलकुलेशंस आर देयर। डिस्काउंट कितना दिया इसको, अब डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट विल मेक इट सम एक्चुअल अमाउंट डिस्काउंट दे देगा। सो डिस्काउंट इज मे बी 500 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 500 डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट प्लस करना है क्या माइनस करना है। सो व्हाट आई विल डू इज दिस इक्वल, क्या करना है, इक्वल माइनस ऑफ दिस, सी -500 आ गया। आई रिपीट राइट, मैं इसको रिपीट करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, डिस्काउंट मैंने 500 रुपीज डिस्काउंट दिया, पर डिस्काउंट इसमें से माइनस होगा ना, तो ये अगर मैं इक्वल ले लेता हूँ, यही चीज अभी यहाँ पे 1 है। सो 1 इंटू 500, मैं अगर इसको सीधा ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सिंपल ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सो दैट फॉर्मूला विल बी 1 इंटू 500, बट 500 मुझे क्या चाहिए, 500 ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे, अगर इनकी सबकी मुझे नीचे टोटल करनी है ना, ये टोटल नीचे करनी है, तो टोटल मुझे नीचे करनी है तो डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ेगा। सो दिस मैन्युअली आई कैन पुट एट एज माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन में मैन्युअली पुट कर सकता हूँ फॉर्मूले में डालकर, दैट ऑल्सो आई कैन डू। सी आई पुट अ ब्रैकेट फॉर दिस ब्रैकेट, एंड व्हाट आई वांट इज माइनस साइन। सो माइनस करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम -500। फाइन, नाउ दिस इज डन। नाउ व्हाट आई वांट इज नाउ एडिशन ऑफ दिस ऑल, इंक्लूडिंग माइनस, आई वांट एडिशन ऑफ हियर। सो कैसा करना है, सो इज इक्वल टू ऐड करना है। सो देर आर टू वेज, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक छोटी इंडिविजुअल ऐड करना है। तो किसको किसको ऐड करना है मुझे, ये ऐड करना है। सो H20 आ गया, देन प्लस साइन, देन अगेन नेक्स्ट सेल, देन प्लस साइन, अगेन नेक्स्ट सेल, देन प्लस साइन, क्लिक ऑन नेक्स्ट सेल, प्लस साइन, click on next cell, so all cells have been selected and enter।
finish. So they see this total amount is already, it is already displayed. 500 माइनस करके ये बराबर 6523 आ गया. You can see it. एंड दिस टोटल इफ आई, मैंने और आपको बताता हूँ एक और एक फीचर एक्सेल का. ये मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ ये चार सेल, उसका सम यहाँ पे आता है, देखो नीचे कहाँ पे आ रहा है सम. सी हियर, हियर यू सी, you can see the sum. Here you can see the average automatically. Here you can see the count also. So these additions I have done and this is minus sign. So total, this total is done. Total कैसे किया वापस, I'll show you total कैसे, right? So total कैसा, total का formula क्या? If I click on the cell where the total is there, if I click on, the value will come. But if I double click, it will automatically the formula will appear. तो क्लिक करना और डबल क्लिक करना, ये एक, तो ये एक हो गया एडिशन का एक पहला फॉर्मूला. एडिशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, एटो सम से भी कर सकते हैं, सम से भी कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके. बट जो सिंपलेस्ट वे है, हर एक को ऐड करते जाओ, जो हमको एडिशन मालूम है हर एक को ऐड करते जाओ, एंड देन ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल कम, द थिंग्स विल अपीयर. सो दिस इज द फाइनल टर्म्स. ये हमने जो बनाया, ये हमारा अभी और दो तीन चीजें ऐड करनी है इसमें. सी दिस इज द इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस वी हैव क्रिएटेड, राइट. सी इट लुक्स वेरी नाइस. एंड देन कैलकुलेशन भी डाल दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट भी दे दिया, सारी चीजें इसमें हो गई. और सम का फॉर्मूला भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी यूज कर लिया, माइनस का फॉर्मूला भी यूज कर लिया, सेल नंबर भी हमको समझ में आ गया, फॉर्मेटिंग भी बहुत सारी चीजें समझ में आ गई. सो एवरीथिंग इज नाउ इज ओके एंड इन प्लेस विथ अस. Right now, one more thing. Like if you want to, you want to give the name to this sheet. तो यहाँ पे आप शीट जो लिखा है, शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम आएगा, और रीनेम के करने के बाद रीनेम, मेरा जो इनवॉइस था वो इनवॉइस ही नाम इसको देना है मुझे. सो इनवॉइस मैंने दे दिया. सो नाउ द शीट नेम इटसेल्फ इज इनवॉइस, राइट. सो इसी तरह का सेम सेम आपको क्या करना है, एक होमवर्क करना है. तो ये अगर आपने होमवर्क अच्छे से कर लिया, तो फॉर्मेटिंग अपना करीब करीब कंप्लीट हो गया. और आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, ये स्टैम्प जो है, मैं दिखाता हूँ आपको. ये स्टैम्प जो है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ. सो आई इंक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प एंड देन आई चेंज द डायरेक्शन दिस वे. तो यहाँ पे कंपनी का स्टैम्प आ जाएगा, राइट. और इसको मुझे और भी लगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये स्टैम्प को अभी मैं डिलीट करता हूँ, और दूसरा तरीका कर सकता हूँ. मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक स्टैम्प को, व्हाट आई वांट इज आई वांट सम, मे बी आई वांट टू ऐड इंसर्ट सम, राइट. दिस इज आई वांट टू डू, राइट. ये ऐड कर दिए, देन इसमें मुझे राइट क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट किया, और यहाँ पे मैं स्टैम्प लिख रहा हूँ. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ये स्टैम्प करके मुझे क्या करना है, होम पे क्लिक करूंगा, आई वांट इट एट सेंटर, आई वांट इट एट सेंटर. सो दैट ऑल्सो पॉसिबल. सो एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, लाइक वट एवर. स्टैम्प को आपको अगर सिर्फ क्या करना है, पूरा फॉर पूरा फिल नहीं करना है. सो हियर फ्रॉम हियर यू कैन चेंज इट, यू नो इट फ्रॉम हियर फिल, नो फिल आप करोगे तो बॉर्डर आएगा सिर्फ, दैट इज ओके, राइट. राइट. सो नो फिल आ गया, सिर्फ इसमें क्या होगा अभी, ये आपका जो फॉन्ट जो है वो व्हाइट था, तो व्हाइट के जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक या ग्रे करोगे तो उसके ऊपर स्टैम्प आराम से आ जाएगा. सो दिस इज दी, सेव करते रहो, सेव करेंगे ये और भी चीजें आपको